ये जपफू क्रिश्चियन कॉलेज किगवेमा नागालैंड में एनसीसी का ट्रैकिंग कैंप, जिसमें सभी प्रदेशों से एनसीसी कैडेट आ रहे हैं। इधर हो गया ना वीडियो बनाएंगे। रेलवे स्टेशन dignitaries from NCC fraternity and Directorate of Youth Resource and Sports who are present here with us on the dais, ANOs, especially those who have come from far off places in the country, PI staff and my dear cadets coming from all corners of the country. Very warm welcome to the NER trekking camp that we are commencing today. I'll briefly go over what we are doing today, the program. We will have the dignitaries addressing you, and after that we will have a group song. Once the group song is done, we motivate our kids. The chairman of this program, Colonel Vidit, our most respected Brigadier Saha, officers, commanding officers of various units of NCC, the officers of the group command, ANOs from various states, cadets, my officers from the Directorate of Youth Resource and Sports, Nagaland. It's a great privilege for me to be standing in front of you and addressing you today. Thank you for this opportunity, sir. It's amazing to see people from various parts of the country gathered in a small state like ours. You know, you are sitting in an area which has got so much history behind it, particularly the Second World War. You have heard of Second World War? Yes, sir. The Japanese army marched through these hills and came to Kohima. You would have crossed Kohima on your way to this place. And it was at Kohima that the Japanese advance was stopped. And, you know, it was in fact the beginning of the end of the Second World War. That's what we believe in. Today you are here, we are going to do trekking. And I'm sure... Yes, sir. Yes or no? No. So I take that all of you understand English. Okay. So, Dr. Sikose, thank you very much for your kind words. And gentlemen, we are honored to have him amongst us. He's been a backbone and strength for all NCC activities here. I also once again welcome the staff from DYRS. Thank you very much for all your support for all our activities here. At the outset, I would like to pay my compliments to the organizing staff, that is CO, NCC Battalion, and my other officers who have painstakingly worked to make this particular trek happen in a very, very short duration. It was to be held in Imphal, but as you are aware, there were certain issues in Imphal and ongoing issues. So this trek has now come here, and we are fortunate to host all of you. Breakfast khaya sabne? All of you had your breakfast? Yes, sir. Good. And I hope you have called up your parents at home and given them the message that you're all safe and you're all healthy? Yes, sir. Good, that's important. So along with the cadets, I welcome all the ANOs here, and you are going to be our eyes and ears and our guide for ushering all the cadets through this particular trekking program. Nagaland is uncharted experiences that you've had. It's got beautiful places, and Northeast as a whole has got beautiful places. So we also have from our own Northeast region a lot of cadets who have come from other groups of Northeast. I will urge you are fortunate all the cadets who have come from Jharkhand or Bihar or Rajasthan, warriors, West Bengal, Sikkim. Please try and interact with our cadets of Northeast.
You will be able to learn a lot. You will be able to know about Northeast a lot. And somebody, some great traveler said that you learn more by traveling and going to places than in your books. So this is an experience that you will take back and remember all your lives. And you are at your most impressionable age group. Whatever you imbibe good now, it will carry you through your life. He talked about environment. This is something that we need to save for our future generations. Dignitaries from NCC fraternity and Directorate of Youth Resource and Sports who are present here with us on the dais. ANOs, especially those who have come from far off places in the country. PI staff and my dear cadets coming from all corners of the country. Very warm welcome to the NER trekking camp that we are commencing today. I'll briefly go over what we are doing today, the program. We will have the dignitaries addressing you, and after that we will have a group song. Once the group song is done, we will motivate our kids. The chairman of this program, Colonel Dilip, our most respected Brigadier Saha, officers, commanding officers of various units of NCC, the officers of the group command, ANOs from various states, cadets, my officers from the Directorate of Youth Resource and Sports, Nagaland. It's a great privilege for me to be standing in front of you and addressing you today. Thank you for this opportunity, sir. It's amazing to see people from various parts of the country gathered in a small state like ours. You are sitting in an area which has got so much history behind it, particularly the Second World War. You've heard of Second World War? Yes, sir. The Japanese army marched through these hills and came to Kohima. You would have crossed Kohima on your way to this place. And it was at Kohima that the Japanese advance was stopped. And, it was in fact the beginning of the end of the Second World War. That's what we believe in. Today you are here, we are going to do trekking. And I'm sure. Yes, yes or no? No. So I take that all of you understand English. Okay. So Dr. Sikose, thank you very much for your kind words. And gentlemen, we are honored to have him amongst us. He's been a backbone and strength for all NCC activities here. I also once again welcome the staff from DYLS. Thank you very much for all your support for all our activities here. At the outset, I would like to pay my compliments to the organizing staff, that is CO, NCC Battalion, and my other officers who have painstakingly worked to make this particular trek happen in a very, very short duration. It was to be held in Imphal, but as you are aware, there were certain issues in Imphal and ongoing issues. So this trek has now come here and we are fortunate to host all of you. Breakfast khaya sabne? All of you had your breakfast? Yes, sir! Good. And I hope you have called up your parents at home and given them the message that you're all safe and you're all healthy? Yes, sir! Good, that's important. So along with the cadets, I welcome all the ANOs here, and you are going to be our eyes and ears and our guide for ushering all the cadets through this particular trekking program. Staff, other experiences that you've had, and you will benefit the entire lot of cadets here.
So cadets, welcome, warm welcome to the beautiful land of Nagaland. It's one of the most beautiful places in this country, and I think you are fortunate to be here, part of this wonderful land of warriors and wonderful people here. I myself have served here before. Nagaland is uncharted. It's got beautiful places, and Northeast as a whole has got beautiful places. So we also have from our own Northeast region a lot of cadets who have come from other groups of Northeast. I will urge all the cadets who have come from Jharkhand or Bihar or Rajasthan, West Bengal, Sikkim, please try and interact with our cadets of Northeast. You will be able to learn a lot. You will be able to know about Northeast a lot. And somebody, some great traveler said that you learn more by traveling and going to places than in your books. So this is an experience that you will take back and remember all your lives. And you are at your most impressionable age group. Whatever you imbibe good now, it will carry you through your life. He talked about environment. This is something that we need to save for our future generation. ये इनका हट है जिसमें ये लोग यहाँ काम करते हैं, दिन में आते हैं, सुबह आ जाते हैं और शाम को इधर से चले जाते हैं। यहाँ सारे दिन काम करते हैं। कभी कभी ये बता रहे हैं कि हम यहाँ रुक भी जाते हैं। और यहाँ इनका सामान है, पोटैटो है, आलू रखे हुए हैं, पूरा खाने पीने का सामान है, यहाँ बना भी सकते हैं। और ये वापस घर भी चले जाते हैं। इनका घर नीचे गांव में है, किगवेमा। ये किगवेमा गांव है। किगवेमा गांव से यहाँ आते हैं और फिर ये शाम को चले जाते हैं। तो कितना अच्छा नेचुरल, क्योंकि ये ट्राइब एरिया है और बहुत ही अच्छी जगह है। आपने ऐसा नज़ारा देखो, कितना अच्छा, पूरा हरियाली है चारों तरफ का। हाँ, दीमापुर रेलवे स्टेशन पर ये सभी कैडेट सब बनना तो बोली। दीमापुर से रेलवे स्टेशन से कोहिमा के लिए अभी हम पहुंचेंगे। ये दीमापुर रेलवे स्टेशन है। दीमापुर रेलवे स्टेशन से हम जाएंगे कोहिमा की तरफ। और कोहिमा के पास किगवेमा गांव में हम नागालैंड के एक गांव में किस तरह लोग रहते हैं, किस तरह वहाँ निवास करते हैं, किस तरह खेती तैयार करते हैं, किस तरह अपनी आजीविका के लिए फसल बोते हैं, जंगल में जाकर हम आपको ले चलेंगे यहाँ नागालैंड के जंगलों में। तो अभी हम दीमापुर से निकलते हैं कोहिमा की ओर। कोहिमा अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। कोहिमा पहुँचेंगे। कोहिमा पहुँचने के बाद वहाँ एक गांव में जाएंगे। गांव में हम घने जंगलों के बीच में, जहाँ चारों तरफ पहाड़ है, क्योंकि यहाँ के लोग पहाड़ी इलाके में पहाड़ों पर रहते हैं। दीमापुर से जैसे ही आगे निकलते हैं कोहिमा पूरा पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। अभी ये जो आपको पीछे दिखाई देगा ये पूरा कोहिमा है। ये कोहिमा का दृश्य है। कोहिमा से हम पहुंच गए जंगलों में, किगवेमा गांव। अब देखते हैं यहाँ के लोग किस तरह खेती करते हैं, किस तरह अपनी आजीविका कमाते हैं। छोटी झोंपड़ी मुना देख रहे हो, ये सब के सब यहाँ पोटैटो की खेती की जाती है, आलू की खेती की जाती है। ये यहाँ हम पहुँचे हैं पोटैटो फार्म। अभी आगे कौन सा पहाड़ है सर? ये जफू पहाड़ है। जफू? यस सर। अच्छा, कितना ऊंचाई हाइट है उसका? तकरीबन 3048। कौन सा है जफू? ये इधर से दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये सब जफू है, लेकिन सबसे ऊंचा वाला वो है। अच्छा, हाँ, दोबारा बताए कौन सा वाला है? सबसे ऊंचा वाला वो है। ये सब जफू ही है। अच्छा। ये कौन सी जगह है? ये पोटैटो फार्म है सर। अच्छा, ये इसका कौन लोग मालिक है? या इस जगह का किगवेमा विलेज का लोग का ये फार्मिंग प्लेस है। ये गांव विलेज कौन सा है? किगवेमा विलेज। अच्छा, किगवेमा विलेज, वहाँ के लोग है ये। हाँ सर।
ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पी मोइबाक फोम है सर। क्या? पी मोइबाक फोम सर। पी माबा फोम। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हम पहुंचे हैं यहाँ पोटैटो फार्म, जम्फू हाइट। जम्फू क्या बोलते हैं इसको? जफू 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 पिक। जफू पिक। हाँ सर। जफू पिक। ये जो सामने सबसे ऊंची चोटी दिखाई दे रही है, ये पूरा जफू है, लेकिन जो सबसे चोटी ऊंचाई है उसको वो सबसे हाइट है, जो नागालैंड की दूसरी सबसे हाँ सर। बड़ी चोटी है, पहाड़ी है। वहाँ पर ये अभी हम लोग पहुँचेंगे। तो ये अभी बीच में पोटैटो फार्म है, जहाँ तक व्हीकल भी आ जाता है, हाँ सर। 4 व्हीलर आ जाती हैं, और उसके बाद खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। हाँ। तो अभी चढ़ाई के लिए तैयार हैं सभी, अभी चढ़ाई शुरू होगी। हाँ ओके, रेडी सारे? यस सर। या गुड। किगवीमा गांव में है। किगवीगा के ये पहाड़ियों का एरिया है, और अभी हम पहुंचेंगे ऊपर जफू। आ गए हमारे जफू पोटैटो पिक। फार्म के मालिक। ये में रहना है अभी ये पोटैटो फार्म है, जहाँ पर पोटैटो की खेती की जाती है। ये कितना अच्छा ये देख रहे हो, बहुत ही अच्छा दृश्य, जंगलों के मध्य पहाड़ी इलाका। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, घने जंगल हैं, पेड़ हैं। ऊंचाई तक। और हम लगभग अभी ये टोटल 8,500 फीट की ऊंचाई पर है ना? 8,500। हाँ। अभी अपन कितनी ऊंचाई पर हैं यहाँ? 4,000। 4,000 की ऊंचाई पर आ चुके हैं। 4,000 अभी में जाने 4,000 बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होगी। अभी देखते हैं कितना अचीव कर पाते हैं। सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? ओके, रेडी। यहाँ ये पोटैटो की खेती, ये पहाड़ियों के बीच में इस तरह तैयार किए जाते हैं। पोटैटो फार्म। ये फार्म है जिसमें सभी फसल बोई जाती हैं, जैसे आलू है, गोभी है, ये अन्य फसल है। यहाँ की जो लोकल भाषा में अलग बोला जाता है, उस तरह की यहाँ सब्जियां उगाई जाती हैं। बड़े पेड़ नहीं ये चारों तरफ आप जो लोग देख रहे हो, ये पहाड़ी तलहटी में बीच में मिट्टी, या तो बरसात का पत्थरों को पानी आता है, निकाल के मिट्टी तैयार की जाती है और उसमें फसल बोई जाती है। अभी ये देख रहे हो आप, पानी आता है। हम आपको इनसे मिलवाएंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। आप देखते रहिए और समझते रहिए यहाँ के लोगों को। खेती, आलू की खेती की जाती है। ये सभी आलू की खेती है। यहाँ ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उसकी गुदाई, बुआई, जुताई जो भी है वो अपने हाथों से करते हैं, और ये खेत तैयार करते हैं। किगवीमा गांव की लोगों की बस्तियों के लोगों का यहाँ हिस्सेदारी की हुई है, और उनको आपस में बांट करके ये खेती करते हैं। ये नागालैंड की खेती किस तरह होती है। ये सभी पोटैटो फार्म है, यहाँ पर घास भी जला रखी है। ये है ऐसे लोग जो काम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो फावड़ा बोलते हैं जिससे ये खुदाई करते हैं। ये लोग हिंदी नहीं जानते। और कितने पहाड़ों के बीच में ये किस तरह खेत बनाते हैं, किस तरह ये आलू बोते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद छोटे छोटे हिस्से खेतों के बना रखे हैं, छोटे छोटे पत्थरों की दीवारें कर रखी हैं, और इस पे खेती की जाती है। ये है नागालैंड की खेती, नागालैंड के पोटैटो फार्म। ये किगवीमा गांव
जो कि नागालैंड से 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, ईस्ट वेस्ट की तरफ। ये देखा आपने नागालैंड का पोटैटो फार्म। अब बताओ क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये? क्या? हाँ, फगो। फगो, अच्छा ये फगो है जिससे घास को हटाते हैं। ये क्या है? अजी। अजी, अच्छा वेरी गुड। ये आपने हिस्से बांट रखे हैं कैसे इसके? नीचे तक। अच्छा, तो ये किसका है, ये किसका है? ये हमारा। अच्छा, और फिर नीचे सतनी। सतनी। सतनी नाम है या क्या? तिन्ने। किन्ने? तिन्ने। तिन्ने। इसको क्या बोलते हैं, तिन्ने? तिन्ने क्या होता है? पड़ोसी है। हाँ। तिन्ने कौन होता है? सतनी। सतिनी। अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ क्या क्या होता है? आलू आलू और बंदा गोभी। बंदा गोभी, मूला। मूला और हैं? मकोई। मकई, मकई। अच्छा अच्छा, कुचू। कुचू। अच्छा, इतुई। हाँ यही होता है। ये पेड़ क्या है? अपो। अप्पो। ये लकड़ी भी अप्पो की है। ये घास जला रहे हो, इसको क्या बोलते हैं घास को? इतुआ। इटुआ। ये घास जो जल रहा है, हाँ क्या है नाम? क्या नाम है इसका? ये आ गए, ये आ गए, ये जानते हैं ना। इसका नाम क्या है? इसका ये घास का ये घास का नाम हमने कभी नहीं पता। हाँ, नहीं पता। अच्छा अच्छा, ये पोटैटो फार्म पर जो लोग काम कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। अजोल है। अजोल। अजोल है। अजोल है। अच्छा, क्या क्या उगाते हो इधर? आलू, आलू, लहसुन, ये आलू गोभी, आलू गोभी, गोभी और कुचू। कुचू, अच्छा, पंकिन भी मिलेगा। पंकी, पंकिन, पैंकिंग, पंकिन। पार्किंग। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हो, इसी गांव के? कहाँ घर, हाउस? बस्ती है? किगेमा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यही काम करते हो? क्या काम करते हो? यहाँ काम करते हो सुबह शाम? 9 बजे। ये आपका ही है? आपका खुद का है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। 9 बजे आएगा। हाँ हाँ हाँ, 3 बजे छुट्टी करेगा। 3 बजे छुट्टी करेगा। ओके ओके। ये लोग यहाँ जो खेती करते हैं, इस तरह हट बना करके, झोंपड़ी बना करके यहाँ रहते हैं, जिसमें ये दिन में काम करते हैं और रात को निकल जाते हैं। ये ऊपर तक आप जो झोंपड़ियाँ देख रहे हो, ये इनके हट झोंपड़ियाँ हैं। इसमें ये लोग रुकते हैं, दिन में काम करते हैं और रात जब काम करने के बाद शाम को ये घर चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा ये एरिया है जो बड़ी मेहनत से यहाँ तैयार करते हैं ज़मीन को, और उसमें अपना आजीविका के लिए यहाँ पर इस तरह की सब्जियाँ उगाते हैं और उनसे अपनी आजीविका कमाते हैं। ये आपको जो जंगल में झोंपड़ियों में रहते हैं दिखाते हैं, झोंपड़ी इनकी किस किस बनी होती है। ये पेड़ हैं, वो काम कर रहे हैं। ये बांस की बनी हुई है। ये बांस की बनी है।
ये किसका है? बांस का? क्या बोलते हैं इसको? हाँ? इसको क्या बोलते हैं? हाथ। हार्ट। हार्ट। अच्छा अच्छा। यहाँ रात को इधर ही रुकते हो या चले जाते हो आप? कभी कभी। कभी कभी इधर ही रुक जाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो राजस्थान से हैं। हाँ। इधर बना लूं वीडियो? ये देखो क्या क्या सामान, पोटैटो रखे हुए हैं, आलू। आलू। ये दिखाना आलू, एक आलू, ये आलू, ये पहाड़ी आलू। यहाँ जो आलू होता है इस तरह का होता है। बनावट तो वैसी है साधारण, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग है, मिट्टी का अंतर है। टेस्ट में भी शायद अच्छा होगा। ये हम करते हैं, दिन में आते हैं, सुबह आ जाते हैं और शाम को इधर से चले जाते हैं। यहाँ सारे दिन काम करते हैं। कभी कभी ये बता रहे हैं कि हम यहाँ रुक भी जाते हैं। और यहाँ इनका सामान है, पोटैटो है, आलू रखे हुए हैं, पूरा खाने पीने का सामान है, या बना भी सकते हैं। और ये वापस घर भी चले जाते हैं। इनका घर नीचे गांव में है, जो कि कौन सा गांव है ये नीचे? यहाँ पे। हाँ, गांव, विलेज कौन सा है? किगवेमा। ये किगवेमा गांव है। किगवेमा गांव से यहाँ आते हैं और फिर ये शाम को चले जाते हैं। तो कितना अच्छा नेचुरल, क्योंकि ये ट्राइब एरिया है और बहुत ही अच्छी जगह है। आपने ऐसा नज़ारा देखो, कितना अच्छा, पूरा 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 हरियाली है चारों तरफ का। हाँ, ओके। ये जो लहसुन है, इस तरह के सभी, आप ये गोभी देख रहे हैं। खेतों को कैसे, इसमें क्या आलू बोओगे? क्या बोओगे? आलू आलू आलू, पोटैटो। ये और क्या बोते हो इधर आलू के अलावा? आलू ले रहा हूँ। आलू के अलावा क्या बोते हो इधर? ये इधर क्या जला रखा है? इधर क्या जला रखा है? ये घास। अच्छा, घास को जलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें अभी आलू बो दिया कि बोओगे? बो दिया कि अभी बोओगे आलू? इसको क्या बोलते हो जिससे खोद रहे हो? आलू आलू। नहीं, इसको जो हाथ में पकड़ रखा है, ये आलू। नहीं, ये जिससे खोद रहे। हवा हवा अव्वा, हवा। नदा मुझे राज्य। फावड़ा, फावड़ा, फावड़ा या फौआ? पोटैटो स्वीट है। इसको वैसे ही खा लेते हैं? पका के खाते हैं या कच्चा खाते हैं? कच्चा कच्चा कच्चा। अच्छा अच्छा। खाया जाता है सर। आलूआ है, हैं? आलूआ है। ये गोभी है, आलू है, मूली है, मकई है। इस तरह की फसलें यहाँ पर की जाती हैं।